Okay, so today's topic of presentation is the management of mandibular fractures. In the last lecture, we studied about how the introduction to the maxillofacial traumatology, classifying all the fractures, learning about the type of fractures. Now we're going to manage the now we're going to study the basic principles of managing mandibular fractures. Any fracture of the body is managed in two ways. Either it is reduced and stabilized in a closed fashion, or it is opened, reduced, fixed internally and then closed, and then we wait for the healing process to begin. And at the end of 3 to 4 months, which the normal bone fracture healing time varies between 4 to 6 months. 4 months तक complete healing fracture की हो जाती है, and the final remodeling of the fracture takes place up till 6 months. So what do I mean when I say close reduction? Close reduction, the word reduction when it comes to traumatology means bringing the fractured bony segments together in the right anatomical position. This is very important to know that reducing means bringing the fracture segments together in the normal anatomical position. So when it comes to mandible, how do we know that this is the right this is the right position, this is actually the right spot, the right anatomical spot? So if we can give an incision and expose the fracture and see the fracture segment in front of us, we can directly see the fracture segments, we can align them together, there should be no gap, and we can just put a plate on it. And like let me show you a fracture. Let me show you a fracture. Okay. Okay, so you see there is this fracture in the angle of the mandible area. You can see a fracture line running. There should be no gap between the fractures. If we are able to do that, that means that the fracture segments have been reduced properly. Now if we haven't exposed the fracture, let's say we haven't exposed the fracture and we are just we're just trying to normalize the bony anatomy by reducing with the digital fingers के साथ, हाथ के साथ fracture segments को पकड़ के आप reduce जब करते हैं, that is called digital manipulation. Digital manipulation के अंदर under some kind of sedation or anesthesia, let's say हम patient की bony segments को align कर देते हैं without exposing, that will be called close reduction. Okay, then उसकी जो stabilization है उस fracture की, वो हम करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. वो कौन से तरीके हैं हम सारे पढ़ेंगे. Most of them require different kinds of wires, arch bars, etc., splints and everything. So close reduction की जाती है. In the past, almost all fractures were treated in a closed manner, but with the advent of small mini plates, with the advent of good surgical aseptic techniques, we are able to open up fractures in the maxillofacial region and treat them directly. Now the gold standard for treating any fracture is to open it up, reduce it under direct vision, and then stabilize it or fix it with the help of different types of hardware. अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले close reduction and its indications. First of all, non-displaced favorable fractures. Okay, let's say the fracture is a green stick fracture, or you can say, let's say a fracture is non-displaced. There is a fracture line, but there is no mobility. There is minimal pain. You can put the patient under soft diet. It's a favorable fracture. The fracture has occurred in a manner that the muscular forces are tend to pull the fracture segments together, and there is no pain. You can manage it by close reduction. The second indication is very important: grossly comminuted fractures. Like I said, nowadays the gold standard to treat any fracture is by open reduction and internal fixation, ORIF. But these indications need to be used sometimes in certain situations, like a grossly comminuted fracture. Let's say a patient is immunocompromised, he cannot undergo surgery, number one. Number two, let's say the patient's
mandible is edentulous and the patient is of 80 years old and there is a gunshot wound or there is a crush injury of the mandible, the bony segments inside the mandibular mucosa, mandible mucosa के अंदर होगा ना, mucosa के अंदर होगा पेरियोस्टियम, उसके नीचे बोन होगी, ठीक है। तो जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स होंगे ना, उनको जो चीज़ ब्लड सप्लाई दे रही है ना, वो प्रिडोमिनेटली उसका पेरियोस्टियम होता है, ओके। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल मैंडिबल का ब्लड सप्लाई क्या होता है, सेंट्रीपीटल ब्लड सप्लाई, सेंट्रीफ्यूगल ब्लड सप्लाई। सेंट्रीपीटल ब्लड सप्लाई इज़ बेसिकली द ब्लड सप्लाई रनिंग इन द मैंडिबुलर कनाल, इंफीरियर एल्वेलर आर्टरी, वो आके सप्लाई कर रही है मैंडिबल को। सेंट्रीफ्यूगल होता है पेरियोस्टियम ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू के साथ जो ब्लड सप्लाई मैंडिबल को आ रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एज, सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ना ब्लड सप्लाई, दैट बिकम्स मोर डोमिनेंट एज आर्टरीज टेंड टू स्क्लेरोज, ओके। सो मैंडिबल की जो पेरियोस्टियम है उसके थ्रू मैंडिबुलर फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा आ रही होती है। सो इन सर्टन सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड other circumstances also, like age of the patient, like surgeon's preference, like availability of a plastic surgeon, because let's say if it's a greatly comminuted fracture in pieces and they're very small pieces, you cannot even reduce them, then you need to remove those pieces and place new bone, and obviously you will need to take a graft from a secondary site. So if that facility is not available, you won't be able to do the treatment. So what we do is we let that fracture heal in a bag of bones. I'm air quoting, you guys cannot see, but I'm air quoting right now, bag of bones, okay. So what happens is we let those comminuted fractures heal in the periosteum. थोड़ा सा उसकी एनाटॉमिकल रिडक्शन ख़राब होगी, थोड़ा सा राइट लेफ्ट होगा वो, बट क्लोज रिडक्शन के थ्रू, एज लॉन्ग एज ओक्लूजन इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, वी कैन लेट इट हील। क्यों? क्योंकि उसको अगर खोलेंगे ब्लड पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग होगी और दैट बोन विल नेक्रोज, छोटे छोटे पीस होंगे वो नेक्रोज कर जाएंगे, बट इफ़ इट रिमेन्स क्लोज रिडक्शन के थ्रू दे कैन हील। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू। लेट्स से सॉफ्ट टिश्यू बहुत शॉर्ट है, तो उसके अंदर अगर आप हार्डवेयर प्लेस कर दोगे फ्रैक्चर के ऊपर, तो फिर उस जगह पे सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग बिल्कुल नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू अगर हो कहीं पे लूज़ हो गया तो वहाँ पे ड्रेसिंग करते रहें, उस जगह को क्लीन रखें, आहिस्ता आहिस्ता म्यूकोजा विल ग्रो, एपिथेलियलाइजेशन, म्यूकोलाइजेशन हो जाएगी सारे एरिया की। बट इफ़ हार्डवेयर रख देंगे फिर ग्रो कभी भी नहीं करेगा। सो ईदर यू डू अ सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट और यू डू अ क्लोज रिडक्शन। फ्रैक्चर्स इन सिवियरली एट्रोफिक ईडेंचरस मैंडिबल, जैसे मैंने आपको बताया था, severely atrophic mandible, they rely on their blood supply, so उसके ऊपर हार्डवेयर लगाएंगे तो it won't heal. Fractures in children with developing dentition, okay, developing dentition है ना, अगर आपने प्लेट लगानी है लेट्स से मैंडिबल पे, तो प्लेट के स्क्रूज जो हैं वो प्राइमरी टूथ बर्ड्स को डैमेज करेंगे ना, तो हम वी नीड टू अवॉइड डैट। ऑल्सो बच्चों के अंदर मैंने आपको बताया था नॉर्मली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होते हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता बच्चों के अंदर, सिवियर यानी कि सिवियरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स बच्चों में कम ही मिलते हैं हमको। नेक्स्ट है कोरोनॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर, ओके। कोरोनॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर, नॉर्मली कोरोनॉइड का जो फंक्शन है ना, दैट इज़ उसका कोई एज सच फंक्शन नहीं है, उसका फंक्शन सिर्फ यही है कि उसके ऊपर अटैच होता है टेम्पोरालिस मसल। सो अगर कोरोनॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर हो गया तो उसका डायरेक्टली इट इज़ नॉट अफेक्टिंग दी ओक्लूजन, सो माउथ ओपनिंग में वो कभी कभी हिंडर कर रहा होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। अगर फ्रैक्चर कंप्लीट हो गया और उसको टेम्पोरालिस मसल ऊपर पुल कर ले तो इट कैन गो बिलो द ज़ाइगोमेटिक आर्च और ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स, और माउथ ओपनिंग में वो पेन हो सकती है या हिंड्रेंस आ सकती है, या लैटरल साइड टू साइड मैंडिबुलर मूवमेंट में हिंड्रेंस आ सकती है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर वी माइट नीड टू एक्सप्लोर एंड रिमूव द कोरोनॉइड प्रोसेस, कोरोनॉइडेक्टमी की जाती है, कभी भी इसको रिडक्शन करके इसकी फिक्सेशन नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे ना कॉन्डाइलर फ्रैक्चर का चैप्टर, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है क्लोज रिडक्शन का। वाई, वो आपको पूरा चैप्टर उसका पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर क्लोज रिडक्शन फिक्सेशन? ब्राइडल वायरिंग,
ओके, ब्राइडल वायरिंग इज़ अ मेथड जो कि इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। जैसे लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी का लेट्स से फीमर का फ्रैक्चर है, किसी का हुआ है पेशेंट का, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इमरजेंसी में क्या करते हैं, उसके ऊपर ड्रेसिंग करके उसको स्प्लिंट कर देते हैं, उसके ऊपर एक हार्ड स्प्लिंट कर देते हैं ताकि वो फ्रैक्चर सेगमेंट्स मोबाइल ना रहें, बिकॉज वो हल्का सा भी मोबाइल होंगे तो देयर विल बी सेवियर पेन, फ्रैक्चर सेगमेंट्स के हिलने की बहुत सेवियर पेन होती है। सो इन दी ओरल कैविटी व्हाट वी कैन डू इज़, हम जहाँ पे फ्रैक्चर सेगमेंट है ना, लेट्स से मिड लाइन में फ्रैक्चर है, ओके दिस इज़ द पिक्चर हेयर ब्राइडल वायरिंग की, डू यू सी हेयर, यहाँ पे मिड लाइन में सिम्फिसिस का फ्रैक्चर था, तो इमरजेंसी के अंदर क्या किया कि दोनों लैटरल इंसाइजर्स के अराउंड एक सिंपल एक वायर अराउंड द लैटरल इंसाइजर्स लेकर के और बीच में लाकर उसको ट्विस्ट कर दिया इस तरीके से, ये देखें एक्सरे के अंदर। इससे होगा कि टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन होगी ये फ्रैक्चर की, पेशेंट को पेन होना बंद होगी। ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीमोस्टेसिस, फ्रैक्चर सेगमेंट अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं, तो आप व्हाट यू कैन डू इज़ उसके ऊपर पैक भी नहीं रख सकते बहुत देर तक, क्योंकि अगर पैक रखोगे तो पेशेंट को पेन होगी। तो अंडर लोकल एनेस्थीसिया व्हाट कैन बी डन इज़, वायर पकड़ी, लैटरल इंसाइजर और केनाइन के दरमियान, एक लैटरल इंसाइजर और केनाइन के दरमियान बक्कल साइड से लेकर गए, लिंगुअल साइड से वायर निकाली, एक सिंपल जो है ना 0.5 mm थिक वायर, 0.45 mm थिक वायर केनाइन और लैटरल इंसाइजर के दरमियान से गुजारी, लिंगुअल साइड से निकली और लिंगुअल साइड पे दूसरी साइड के केनाइन और लैटरल इंसाइजर के दरमियान से वापस निकाल के दोनों जो फ्री एंड्स होंगे वायर के बक्कल साइड पे, उन दोनों को आपस में पकड़ के ट्विस्ट कर दिया। आई होप आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा। ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट करने के बाद उसको टाइट कर दिया और पेशेंट की पेन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ आर्च बार एप्लीकेशन। आर्च बार की एक्सरसाइज भी आप लोग कर चुके हो। दीज आर बेसिकली दो किस्म की आर्च बार्स होती हैं, एरिच की और विंटर की। ओके आप लोग ये नोट कर लें, एरिच की ERICH एंड विंटर नॉर्मल विंटर, ठीक है। सो एरिच आर्च बार होती है, विंटर, इसके अलावा और ये दो कॉमन है, इसके अलावा और बहुत सारी मॉडिफिकेशन अब आ चुकी हैं। इसमें होता क्या है, आर्च बार इज़ बेसिकली दिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन इन डेंटेट पेशेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटेट, ठीक है, इसके लिए दांत बड़े ज़रूरी हैं। देखो ये आर्च बार लगी, ऊपर की तरफ जो लगाई है उसके हुक्स फेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे जो आर्च बार लगाई उसके हुक्स फेस कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये आर्च बार दांतों के साथ फिक्स करके फिर उन दोनों आर्च बार्स को आपस में बॉक्स वायर्स करके जोड़ दिया। ओके, व्हाई मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन? ओके, सो मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन अंडर प्रॉपर ओक्लूजन इसलिए किया जाता है बिकॉज क्लोज रिडक्शन के अंदर व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिलाइंग ऑन द ओक्लूजन, वी आर रिलाइंग ऑन द ओक्लूजन कि ये फ्रैक्चर रिड्यूस हो गया होगा। ओके, क्योंकि हम फ्रैक्चर सेगमेंट्स को डायरेक्टली तो नहीं देख रहे एक्सपोज करके, तो वी आर रिलाइंग ऑन दी ओक्लूजन। सो दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक क्लोज रिडक्शन का, बिकॉज लेट्स से इफ अ पेशेंट हैज़ वेरी सिवियर मैल ओक्लूजन तो इट विल बी स्लाइटली डिफ़िकल्ट फॉर द सर्जन टू मेक श्योर कि रिडक्शन प्रॉपर हो चुकी है, क्योंकि उस पेशेंट की ऑलरेडी मैल ओक्लूजन है। एनीवे, आर्च बार एप्लीकेशन इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आर्च बार एप्लीकेशन के एक और फ़ायदा मैं आपको, दो फ़ायदे और मैं आपको बता दूं, वो ये होते हैं कि कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स के अंदर वी नीड गाइड इलास्टिक्स ऑल्सो, हम गाइड इलास्टिक्स पेशेंट को देते हैं ताकि उसकी मैल ओक्लूजन ठीक कर सकें। वो कैसे, वो आपको इंशाल्लाह कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स के चैप्टर में बताएंगे। बट जैसे एक और चीज़ होती है आईलेट्स या IVY लूप्स, ये डायरेक्ट वायरिंग के अंदर भी वो ऑप्शन नहीं है। IVY लूप्स आ गई है, इसके अंदर भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आर्च बार के अंदर ऑप्शन होता है कि वी कैन प्लेस गाइड इलास्टिक्स। गाइड इलास्टिक मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक पिक्चर आ रही है आगे। नेक्स्ट, आर्च बार का एक और फ़ायदा होता है इफ़ देयर इज़ अ डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर। डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर का फ़ायदा ये होगा कि व्हेन यू प्लेस एन आर्च बार, लेट्स से देयर इज़ अ फ्रैक्चर इन बिटवीन द केनाइन, इन द केनाइन प्रीमोलर एरिया, जिसमें कंप्लीट एल्वियोलर हाउसिंग का फ्रैक्चर हो गया, तो आर्च बार अपार्ट फ्रॉम डूइंग मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन विद द ऑपोजिट जॉ, सेम जॉ के अंदर भी वो स्टेबलाइज करेगा बोनी सेगमेंट्स को, ठीक है। दिस इज़ अ टिपिकल एरिच आर्च बार। डायरेक्ट वायरिंग इट्स ऑल्सो कॉल्ड द गिल्मर वायरिंग। इसमें क्या करना है, हर एक दांत छोड़ के एक दांत पे ना एक बकल साइड से इंटरडेंटल स्पेस में एक वायर डाली,
उसी दांत के यानी कि मीजल से डाली तो डिस्टल से निकाल के आपस में ट्विस्ट कर दिया हर दांत को। इस तरीके से आप देखें, ये इफ़ यू नोटिस हेयर, इस तरीके से बहुत सारी फिर वायर्स बन जाएंगी। उन वायर्स को ऊपर और नीचे पकड़ के आपस में ट्विस्ट करके टाई कर दिया। दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक, इट्स नॉट अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम ये होती है कि ऑक्लूजन अच्छी नहीं मिलती इतनी, बट दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। देन देर आर द IVY लूप्स। इट्स अ क्विक एंड ईजी मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन। IVY लूप एक टेक्निक होती है, ये आप लोगों को एक्सरसाइज हम करवाएंगे इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मौका दिया कि हाउ टू मेक ए IVY लूप। IVY लूप बना के आई विल शेयर अ वीडियो विद यू गाइस ऑल्सो कि IVY लूप बनाया कैसे जाता है। ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर के दरमियान एक आई सी बाहर निकल रही है ना। सो वी ट्विस्ट द वायर अराउंड 2 टीथ इन अ मैनर कि उस 2 दांतों के दरमियान बकल साइड से एक आई बन जाती है। उस आई के अंदर से एक वायर, अब ये इस तरीके से नीचे वाले मोलर्स पे ना, इसी तरीके से ऊपर वाले मोलर्स पे भी एक IVY लूप लग जाएगा। फिर उन दोनों के आईज़ में से एक वायर निकाल के आपस में टाइट कर देंगे। ऑल दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन। नाउ व्हाट इफ द पेशेंट इज़ अ eDentulous पेशेंट? सो 2 टेक्निक्स हैं। वी कैन यूज़ अ गनिंग स्प्लिंट और वी कैन यूज़ द डेंचर ऑफ द पेशेंट लाइक दिस। ये देखो, पेशेंट का जो एग्जिस्टिंग डेंचर है ना, लेट्स से eDentulous पेशेंट था और हमने उसमें मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन करनी है, तो उसमें हम आर्च बार तो नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट डेंचर वेयर है तो उसके डेंचर के ऊपर इस तरीके से एक आर्च बार आती है, वो लगाएंगे। और इस आर्च बार के ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे होल्स हैं जिसमें से स्क्रू करके डायरेक्ट बक्कल बोन के अंदर हम जाके इन स्क्रूज को लगा सकते हैं और डेंचर इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज टेम्परेरली, जब तक हमने IMF करनी है। ठीक है ना। उसके तो पेशेंट की तो टूथ की रूट्स नहीं है ना बोन के अंदर, वी कैन डायरेक्टली गो इन टू द बोन ट्रांसम्यूकोजली। दीज आर कॉल्ड पर एल्वियोलर स्क्रूज। नाउ दिस इज़ अ गनिंग स्प्लिंट। गनिंग स्प्लिंट इज़ लाइक अ स्प्लिंट, इस तरीके से स्प्लिंट होता है जिसको आपस में हम टाई कर देते हैं और आगे से ये जो गोल सा सुराख बना हुआ है ये इसलिए ताकि इसमें से खाना वाना पेशेंट को जाता रहे। दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ गनिंग स्प्लिट। ठीक है, ऊपर वाली आर्च थी eDentulous, एक्रेलिक का एक स्प्लिंट बनाया गया है जो कि आपस में जिसको हमने इसको सिक्योर करने के लिए वी कैन यूज़ वायर्स और वी कैन यूज़ स्क्रूज़। अगर मैंडिबल में वे आज से कुछ काफ़ी साल पहले ये किया जाता था कि सर्कममैंडिबुलर वायरिंग, यानी कि अराउंड द मैंडिबल वायर किया जाता था स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, और ऊपर वाले स्प्लिंट को यूज़ किया सस्पेंशन वायरिंग के थ्रू फिक्स किया जाए। सस्पेंशन वायरिंग कैन बी डन विद द फ्रॉम ज़ाइगोमैटिक आर्च और फ्रॉम पिरिफॉर्म अपर्चर। वो कैसे करते हैं वो आपको मैक्सिला वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी राइट नाउ रिमेंबर गनिंग स्प्लिंट यूज्ड फॉर eDentulous पेशेंट्स एंड इज स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ ईदर स्क्रूज और वायर्स। लिंगुअल और लेबियल स्प्लिंट्स ये भी कभी किया जाता है ज़्यादातर बच्चों के अंदर। यू कैन नॉट इफ़ यू आर अनएबल टू डू आर्च बार और IVY लूप्स तो किए ही नहीं जा सकते बच्चों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे IVY लूप्स के अंदर ज़रूरी है कि जो है ना वो डेंटेशन जो है वो परमानेंट हो। यू कैन डू आर्च बार्स, बट आर्च बार्स के अलावा एक और अल्टरनेटिव टेक्निक होती है मेकिंग एन एक्रेलिक स्प्लिंट। एक और ये होता है कैप स्प्लिंट्स होते हैं, ये भी बनाए जा सकते हैं। दीज आर लेस कॉमनली यूज्ड वर्जन बट यू शुड नो दीज ऑप्शंस एज वेल। देन देर इज़ कॉल्ड द जो हॉल मॉरिस अप्लायंस और एक्सफिक्स एक्सटर्नल फिक्सेटर अप्लायंस। ये अब क्यों किया जाता है, इसकी अब थोड़ी सी इंडिकेशंस हैं वो सुन लें। अगर ये एग्ज़ाम में अल्लाह ना करे क्वेश्चन आता है, आई एम इन माई ओपिनियन दैट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फाइनल ईयर लेवल पे। बट सर्जरी का कुछ पता नहीं, आपको पता है सर्जरी के पेपर्स जो है ना वो बड़े मुश्किल आ रहे हैं जी पिछले कुछ सालों से, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। बोन लॉस, इफ़ देयर इज़ बोन लॉस सेकेंडरी टू गन शॉट इंजरीज़। मैंने आपको बताया था कि गन शॉट इंजरी हुई है, किरची हुई है अंदर बोन, उसको आप खोलेंगे ना अगर, तो आपकी इंसिजन के साथ ही कितने छोटे छोटे बोन के पीस बाहर सारे निकल जाएंगे। तो उसको मैनेज किया जा सकता है इस तरीके से कि अगर उन पीसेस को निकाल दें, वहाँ बोन ग्राफ्ट कर दें, और उन पीसेस को निकाल दें और बस वहाँ पे कुछ ना करें। बोनी कंटिन्यूटी अगर इन्फीरियर बॉर्डर की है तो ऊपर से बोन निकाल दें, नीचे से उसको ठीक रहने दें। और यू कैन डू अ जो हॉल मॉरिस अप्लायंस। ये करते हैं इस तरीके से कि एक्स्ट्रा ओरली वाया ट्रोकार स्टैब इंसिजन्स दे के होल्स बनाए जाते हैं और बाहर से एक एक्रेलिक एक स्प्लिंट होता है जिसको उसी टाइम पर फिक्स करके एक्रेलिक के साथ क्योर कर देते हैं। ठीक है,
बस आपने याद क्या रखना है कि एक्सटर्नल फिक्सेटर है, बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेट कर देते हैं पेशेंट को इन इंडिकेशंस में. इफ़ देयर इज़ अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इफ़ द पेशेंट है ऑस्टियोमाइलाइटिस, लेट्स से पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है. ऑस्टियोमाइलाइटिस में आपको पता है हाउ डू वी ट्रीट द पेशेंट, वी डू सीरियल डिब्राइडमेंट, वी डू सिक्वेस्ट्रेक्टमीज. उसमें आप ओपन करेंगे, बोन निकालेंगे, बहुत सारी हार्डवेयर प्लेस ही नहीं कर सकते इंट्राओरली. क्यों? क्योंकि हार्डवेयर प्लेस करोगे तो इन्फेक्शन वाले एरिया में वो हीलिंग कभी नहीं करेगा, दोबारा इन्फेक्शन होगा. सो फॉर टेम्पररी स्टेबलाइजेशन, प्लीज़ रिमेंबर दिस अप्लायंस इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टेबलाइजेशन, नॉट एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन. Okay, cases in which bone grafting procedure has been performed. Let's say a bone grafting procedure has been performed and the blood supply of that area is very slow. So bone grafting के बाद if you fix with mini plates और reconstruction plates तो वो area जो है वो infect कर जाएगा. So we use external fixator to fix it. Okay, what to do? Let's say you have fixed the fractures, you've done everything, and angle वाले area में you see a tooth which is in the line of fracture. Now if it is mobile, showing evidence of periapical pathology, significant periodontal disease, it can be removed. If not, it needs to be preserved. If it is assisting in your reduction, let's say वो इतना तगड़ा है कि आपने उस पर IVY लूप लगा के फ्रैक्चर स्टेबलाइज कर लिया, तो उसको फिर रहने दें, वरना उसको निकाल दें. पार्शियली इरप्टेड थर्ड मोलर विद पेरिकोरोनाइटिस और एसोसिएटेड शेड्स, अगर ये है ना तो निकाल दें. एंड teeth that are preventing your reduction. Also teeth with fracture root, teeth with exposed root abscesses, ठीक है, any excessive delay from the time of fracture to definite treatment, remove the tooth. Now close reduction होगी. Now we will move on to the accepted methods of internal fixation. मैंने आपको बताया था कि ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन के अंदर का तरीका, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. वी ओपन अप द फ्रैक्चर वाया मैनी, बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा. एंड देन वी रिड्यूस द फ्रैक्चर, वी फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स और पिन्स और स्क्रूज और वायर्स, एंड देन वी क्लोज द फ्रैक्चर. What are the indications? Displaced unfavorable fractures through the angle of the mandible. Yes, displaced unfavorable fractures of the body parasymphysis किया जाता है. Prolonged delay in treatment of the fracture with interpositional soft tissue. Let's say एक बहुत पुराना केस आया है, पेशेंट कहता है कि सर मैं बाइक से गिरा था लास्ट महीना और अभी आया और अभी उसका मैंडिबल हल्का हल्का अभी भी हिल रहा है. दैट मीन्स के फ्रैक्चर गलत जगह पर हील करना था, वो वहाँ पे गलत जगह पे हील नहीं किया, वहाँ पे नॉन यूनियन हो गया और वहाँ पे ना कैलस है दोनों बोनी सेगमेंट्स के दरमियान और सॉफ्ट टिश्यू है और इन्फेक्शन हुआ होगा. ऐसी सिचुएशन में यू नीड क्लोज रिडक्शन कर ही नहीं सकते. ठीक है. सो व्हाट वी डू इज़ वी एक्सपोज द फ्रैक्चर, वी रिमूव ऑल द इंटरवीनिंग सॉफ्ट टिश्यू कैलस, वी फ्रेश द मार्जिन ऑफ द बोन अप टिल ब्लीडिंग बोन, उसको फ्रेश करके वी प्लेस अ वेरी नाइस प्लेट देयर एंड वी क्लोज इट अप. सो ओपन रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है. कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल फेशियल फ्रैक्चर्स, बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होगा ना तो उसको आप डिजिटल मैनिपुलेशन से क्लोज रिडक्शन करके IMF करके कर भी नहीं सकते. सो यू डू ओपन रिडक्शन. देन इफ देयर इज़ अ कंकरेंट कॉन्डाइलर फ्रैक्चर एसोसिएटेड फ्रैक्चर एल्सवेयर इन द मैंडिबल. ओके, ये इंडिकेशन आपको थोड़ा कॉन्डाइलर चैप्टर में थोड़ा बेहतर समझ आएगी. कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स most of the times they are dealt with closed reduction, but let's say if the if there are multiple fractures of the mandible and there is a condylar fracture as well, then in some situations a decision is made to fix the condylar fracture as well if the occlusion is not stable without reducing and fixing the condylar fracture. Okay, mid phase fractures and displaced bilateral condylar fractures, ये ना सारी condylar fractures की हैं, ये आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन condylar fractures एक आर अ डिफरेंट एंटिटी देन mandibular fractures and they will be dealt with as a separately as well. ओके, अच्छा, अब ये पेशेंट्स विद सीजर डिसऑर्डर्स, पेशेंट विद कॉम्प्रोमाइज पल्मोनरी फंक्शन, सिवियर एज़मा, जिसको सिवियर एज़मा हो, COPD हो, उसका आप मुंह बंद कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए? नहीं कर सकते. तो ऐसे सिचुएशन में यू नीड टू मेक श्योर कि यू डू. अच्छा, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप पेशेंट का मुंह बाद में खोल देंगे. पेशेंट विल बी एबल टू फंक्शन नॉर्मली. सॉफ्ट डाइट फॉर 1 to 2 weeks फॉलोड बाय हार्ड डाइट एज वेल. ओके, सो पेशेंट विद सीजर डिसऑर्डर, लेट्स से पेशेंट जिसको फिट्स पड़ते हैं उसका आप मुंह बंद नहीं कर सकते 3 मंथ्स के लिए. ठीक है. पेशेंट विद GI डिसऑर्डर्स, उनका 3 महीने के लिए मुंह बंद नहीं कर सकते. साइकेट्रिक और न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स, लेट्स से पेशेंट हैज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, उनका मुंह अगर बंद कर देंगे तो उनकी प्रॉब्लम बेचारों की
एग्रीवेट हो जाएगी. ओके, यू सी दिस इज़ अ वेरी स्पेशल आर्च बार. दिस एन आर्च बार विद पर एल्वियोलर स्क्रूज. यू सी जितने भी है ना टीथ, उनकी इंटरडेंटल जो एरिया ना बोन का, वहाँ पे स्क्रूज हैव बीन प्लेस्ड. ये वायर्स के बगैर फिक्सेशन की गई है. दिस बेसिकली इज़ अ फिक्सेशन विद, इसको आर्च के साथ, स्क्रूज के साथ, पर स्क्रूज की तरह फिक्स कर दिया गया है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द आर्च बार विद गाइड इलास्टिक्स. This is the fracture here. Okay, now the surgical approaches for doing open adduction and internal fixation. First of all, the most common method is the transoral approach. Normally they're done for symphysis, parasymphysis, body angle and ramus fractures normally. Transfacial approaches are three: submandibular, retromandibular and preauricular. Submandibular is used for access to body and angle. Not all, but a few fractures which require a rigid form of fixation. Please remember this कि submandibular approach कब यूज़ की जाती है? When we need to place a rigid plate, when we need to place a thick 2.4 millimeter reconstruction plate, or we need to or there is a very big laceration in the submandibular area. So बजाय transorally जाने के, we can use that big laceration and use that approach and then close it up later. Retromandibular approach, जब a very posterior ramus, badly broken ramus fractures इंट्राओरली करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि ऊपर मैसेटर मसल होगा. फिर जब आप फिक्स करेंगे तो स्क्रूज लगाना इतना पीछे तक मुश्किल होता है. तो वी कैन यूज़ अ रेट्रोमैंडिबुलर अप्रोच. दिस इज़ एन अप्रोच विच, जो कि ईयर लोब के थोड़ा नीचे एक इंसिजन दिया जाता है ओब्लीक सा, एंड उसमें हम एक्सपोज करके फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं. इसका प्रॉब्लम क्या होती है इस अप्रोच की? फेशियल नर्व डैमेज के इसमें चांसेस हैं. सबमैंडिबुलर अप्रोच के अंदर भी, सबमैंडिबुलर अप्रोच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेजिडेंस अप्रोच. उसके अंदर भी it is a danger to the marginal mandibular nerve. And the last is the preauricular approach. This is purely used for condylar fractures, not other fractures, so but you should keep in mind. Now this is the transoral approach. If you notice here, complete retraction free mucosa के अंदर we can give a vestibular incision. इस इंसिजन की इंपॉर्टेंस ये कि अटैच्ड म्यूकोजा पे कभी भी इंसिजन नहीं देना. इट हैज़ टू बी गिवन बिलो द म्यूकोजिंजिवल मार्जिन. म्यूकोजिंजिवल मार्जिन में 2 mm नीचे, अटैच जिंजिवा से एटलीस्ट 2 mm नीचे ये देना है, सो दैट प्रॉपर सूचरिंग कैन बी डन लेटर ऑन. हियर दिस इज द sagittal section of the same incision. You see mucosa has been cut and also the underlying मेंटालिस मसल हैज़ बिन कट. तो बाद में जब इसका क्लोजर करेंगे तो टू लेट क्लोजर होगा. पहले मेंटालिस को को सूचर करना है. ये एंटीरियर एरिया में इंसिजन क्यों दिया जा रहा है? टू रिड्यूस एंड फिक्स सिम्फिसिस फ्रैक्चर्स ना, और मे बी समटाइम्स बॉडी फ्रैक्चर्स. सो व्हाट वी डू इज़ taking care of the mental nerve, we expose the fracture, we clean any callus, any foreign bodies in between the fracture, and then we place a plate. And when during closure, it needs to be a 2-layered closure, mentalis and then mucosa. This is the submandibular approach. 2 finger breadth or around 10 to 15 millimeter below the inferior border of the mandible. You can see here marginal mandibular nerve, this white structure that is passing from posterior to anterior, this is the marginal mandibular nerve, and the other structure that is passing, that is the facial nerve. So if you the structure that is the slightly darker structure going from inferior to superior, that is the facial vein. So if you cut the facial vein, tie it up and retract it in an upward or a caudal direction, it will automatically hide the marginal mandibular nerve. So this is called the Hayes-Martin's maneuver. So मैं आपको बताता हूँ. ओके, इस तरह देखो. सबसे पहले सब मैंडिबुलर अप्रोच में यू विल गेट स्किन को कट किया. मैंने आपको बताया अराउंड, कुछ बुक्स कहती हैं 20 मिलीमीटर, कुछ बुक्स कहती हैं 10 मिलीमीटर. सो अराउंड 10 to 20 millimeter below the inferior border of the mandible, you give a small incision. You will encounter skin, then subcutaneous layer, then superficial cervical fascia, then the pink very thin platysma muscle.
Then you incise that muscle and you go into the superficial layer of the deep cervical fascia. And just before the pterygomesenteric sling and periosteum, you may encounter the facial vein depending upon the position of your incision. If you find the facial vein, just tie the facial vein and retract it in an upward direction. That will if you find the facial vein and retract it upwards, it will automatically hide the marginal mandibular nerve, which is supplying the animation muscles of the face. That will help in protecting the marginal mandibular nerve of the facial vein. Then you will go to the pterygomesenteric sling. You need to cut that pterygomesenteric sling. You will find the periosteum of the mandible. Cut the periosteum and you will find the bone and the fractured sites. Now, what are the different techniques for fixing a fracture internally? The number one is transosseous fixation. That requires wire osteosynthesis. Okay, how do we do that? We expose the fracture segments. We do it like this. Expose the fracture. This is the submandibular approach. Okay, so submandibular, we expose the fracture. Let's say this is an angle fracture. Fracture was exposed. It was reduced with the help of bone reduction forceps. We make 2 holes on either side of the fracture, making sure 3 mm bone is left along the margin of the fracture. 3 mm दूर 2 holes किए छोटे बर के साथ, and then we सिंपल एक राउंड इंटरप्टेड सूचर की तरह का वायर के साथ इसको ट्विस्ट करके हमने कर दिया. दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसओसियस सूचर. ये फिगर ऑफ 8 भी ए में आप यू कैन सी अल्टरनेटिवली यू कैन डू अ फिगर ऑफ 8 और यू कैन डू 2 basically 2 instead of 1 you can do 2 transosseous wires. Okay, then there is the application of bone plates and application of screws and pins. Okay, orthopedic surgery basically थोड़ी पुरानी फील्ड है मैक्सिलोफेशियल से. हमने ये सारी चीज़ें ऑर्थोपेडिक से ली हुई हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वालों ने. ठीक है. There was this plastic surgeon called Kazanjian. He was called the miracle man of the West. He was a German plastic surgeon and he used to treat many patients from World War One. World War One में जितने भी होते थे ना सोल्जर जिनके जॉज टूट जाते थे, तो वो वैसे प्लास्टिक सर्जन था. ऑर्थोपेडिक में ट्रेनिंग भी थी शायद उनकी, एंड ही यूज्ड टू ट्रीट अदर फ्रैक्चर्स, बट जॉ फ्रैक्चर्स को भी वो ट्रीट करते थे. सो कज़ेंजियन ने बहुत काम किया हुआ है. कज़ेंजियन के थ्रू हमने ना बहुत कुछ सीखा हुआ है हमने. सो कज़ेंजियन यूज्ड टू यूज वायर्स, स्क्रूज एंड पिन्स, बट विद द एडवेंट ऑफ aseptic surgical techniques we are able to do bone plates now as well. Now there are different types of fixation when it comes to internally fixing bone fractures. Now this is very important. You can get an exam question in this. Fixations are non-rigid. Non-rigid fixation means that that type of non-rigid fixation will allow macroscopic movements between the fracture segments, यानी कि वायर के साथ फिक्सेशन. नॉन रिजिड फिक्सेशन इज ऑलवेज डन विद वायर्स और MMF. जब हम MMF करते हैं मैक्सिलोमैनुअल फिक्सेशन, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन रिजिड फिक्सेशन. नॉन रिजिड फिक्सेशन will always allow some kind of movement between the fracture segments, so that is not favorable for us. Number 2 is semi-rigid fixation. Semi-rigid fixation is a fixed type of fixation. आगे आ रही है definitions. Definition मैं आपको दिखा के बताता हूँ. So semi-rigid fixation and then rigid fixation. Semi-rigid fixation is done with small mini plates. प्लेट्स आप लोग प्लीज़ याद रखें किस तरह की होती हैं. एक देखें लेफ़्ट साइड पे जो A है, देखें ये बहुत बड़ी प्लेट है. यस, ये बहुत बड़ी प्लेट है. दिस इज़ अ 2.40 प्लेट, 2.4 मिलीमीटर थिक प्लेट. जो B में सबसे ऊपर प्लेट देख रहे हैं ना आप, दिस इज़ अ 2.0 प्लेट. ठीक है, 2 मिलीमीटर थिक है. जो A है ना, दैट इज कॉल्ड अ रिकंस्ट्रक्शन प्लेट. जो B में ऊपर वाली सबसे प्लेट है ना, दैट इज कॉल्ड अ मिनी प्लेट. और जो नीचे छोटी प्लेट है ना नंबर 2 पे B डायग्राम B के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो प्लेट. दैट दोज आर यूज बेसिकली इन वेरी स्मॉल एरियाज, एस्थेटिक एरियाज लाइक आईब्राउ के ऊपर ज़ाइगोमेटिको फेशियल सूचर कभी हम लोग जब जोड़ते हैं तो वहाँ पे वी कैन प्लेस अ स्मॉल माइक्रो प्लेट. वो ये
1.5 मिलीमीटर थिक होती हैं, ठीक है। तो 3 थिकनेस है प्लेट्स की, 2.4, 2 एंड 1.5। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ट्रांसओसियस वायरिंग मैंने आपको बताया, इट कैन बी अ सिंपल डायरेक्ट वायरिंग, इट कैन बी अ फिगर ऑफ 8 वायरिंग, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन और बास्केट टेक्निक। यू कैन डू सुपीरियर बॉर्डर वायरिंग, यू कैन ऑल्सो डू इन्फीरियर बॉर्डर वायरिंग, ठीक है। स्क्रूज एंड पिन्स, ओके। ऑर्थोपीडिक वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्क्रूज। लैग स्क्रूज आर very seldom used in maxillofacial surgery nowadays, but they used to be very popular before, especially in condylar fractures and midline fractures of the symphysis, ठीक है। इसकी टेक्निक क्या है? इफ़ यू नोटिस हेयर, this is called a sagittal fracture. Sagittal fracture जानते हैं आप? If you're seeing the mandible in a sagittal fashion, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि बक्कल साइड पे छोटा होल बनाते हैं, बड़ा होल बनाते हैं, लिंगुअल साइड पे एक छोटा होल बनाते हैं, एंड देन वी पास अ वेरी लॉन्ग 10 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर लॉन्ग स्क्रू फ्रॉम द बक्कल एरिया एंड फिक्स इट ऑन टू द लिंगुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। इस तरीके से 2 स्क्रूज लगाते हैं। 2 स्क्रूज जब लग जाए ना, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिजिड फिक्सेशन। हेयर ऑल्सो इफ़ यू सी मिड लाइन में फ्रैक्चर है, वन साइड ऑफ द फ्रैक्चर से स्टार्ट करेंगे बकल साइड से, एंड वील पास ऑन टू द लिंगुअल साइड एंड देन अगेन टू द बकल साइड पे एग्जिट कर जाएंगे। 2 स्क्रूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हैं ना जब मिड लाइन में, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू अ टाइप ऑफ रिजिड फिक्सेशन, बट दे आर टेक्निक सेंसिटिव एंड दे आर डिफ़िकल्ट टू डू। इसके लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता है, इसके लिए बहुत सारे गेजेस चाहिए होते हैं, क्योंकि यू नीड अ वेरी लॉन्ग ड्रिल फॉर दिस, यू नीड अ स्पेशल ड्रिल्स फॉर लिंगुअल कॉर्टेक्स, स्पेशल ड्रिल्स फॉर बकल कॉर्टेक्स। सो ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है अब, बट यू शुड नो द ऑप्शन। सैजिटल फ्रैक्चर्स के अंदर सैजिटल फ्रैक्चर्स ऑफ द एंगल एरिया एंड मिड लाइन सिम्फिसिस फ्रैक्चर्स एंड कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, इन 3 जगह पे लैग स्क्रू यूज़ किया जा सकता है। सैजिटल फ्रैक्चर का मतलब ये है, देखें एंगल का फ्रैक्चर है, वो टूटा हुआ है और बक्कल और लिंगुअल कॉर्टेक्स आपस में सेपरेट हो चुकी हुई हैं। तो व्हाट वील डू इज़ एंटर फ्रॉम द बक्कल एरिया एंड अप टिल द लिंगुअल कॉर्टेक्स। ये देखें जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शंस है, इसमें बक्कल वाली साइड कितना बड़ा ड्रिल किया हुआ है, कितना गैप है, और लिंगुअल साइड पे छोटा ड्रिल है। ये इसलिए किया जाता है ताकि लिंगुअल साइड पे जाके टाइटली इंगेज कर ले स्क्रू। सेमी रिजिड एंड रिजिड फिक्सेशन टेक्निक। सेमी रिजिड फिक्सेशन टेक्निक्स ये होती हैं जी के मैंने आपको बताया मिनी प्लेट्स यूज़ की जाती हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्सेशन that holds the bone fragments together with a functional stability that allows micro motion to occur between them, resulting in bending in healing. Okay, so this is very interesting. Micro motion mini plates जब हम लगाते हैं उसके बाद micro motion हो रहा होता है, and that is actually preferable when it comes to good optimum healing. Why? Because blood supply उस जगह की अच्छी सी इंटैक्ट रहती है व्हेन देयर इज़ माइक्रो मोशन। अगर बिल्कुल रिजिड फिक्सेशन हो जाएगी, बिल्कुल दबे हुए फ्रैक्चर सेगमेंट आपस में बिल्कुल फंसे हुए होंगे, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना। आप अपने नेल को ज़ोर से दबाओ एंड यू सी ब्लैंच कर जाता है वो ना, इस तरीके से दबाए रखो तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना। एग्जैक्टली दिस इज़ वाई वी समटाइम्स अवॉइड रिजिड फिक्सेशन in normal situations. Why? Because we want slight micro motion on the fracture side so that healing can be optimal. Now ये जो monocortical mini plates है ना, they were popularized by Schompe. Schompe is basically a French orthopedic guy. So he constructed small 2.0 plates made of stainless steel, titanium and आजकल तो ये टाइटेनियम की आती होती हैं। Semi rigid fixation is also known, aka means also known as load sharing fixation. Okay, so they're sharing the load in the oral cavity. आधा load share कर रहा है bony fragments, आधा load share कर रही हैं plates. So that is good for us. You see, this is a body fracture of the mandible और इसके अंदर 2 mini plates लगा दी गई हैं, एक above the mental foramen, एक below the mental foramen. So Schompe जो था ना, Schompe ने ये कहा था कि there are lines of tension and compression in the oral cavity. Okay, I hope स्लाइड के बाद वो आएंगी स्लाइड बाद में, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसके बारे में. There are lines of tension and compression. So in some areas where there are 9 lines of
tension and compression as well, we need to place 2 plates, and that area is basically anterior to the mental foramen. Any fracture anterior to the mental foramen needs to have 2 plates placed on it. और वो anterior to mandible fracture कौन सा होगा? Body fractures भी हो सकते हैं right at the mental foramen, and they can be symphysis and parasymphysis fractures as well. All other fractures need only 1 plate. Angle fracture, body fracture, they need 1. Ramus fracture, they need 1 plate. Okay, so this is called semi-rigid fixation. Why? Because आधा लोड लेगी प्लेट, आधा लोड लेंगी bones. Rigid fixation is a type of fixation that holds the bone fragments together with an absolute stability that allows no motion to occur between them, resulting in primary bone healing. So, and how can we do rigid fixation? We can either do by 2, मैंने बताया था आपको, 2 bicortical lag screws. We can do it by a compression plate. Compression plate जो है ना, उसकी types हैं, उसकी होती हैं dynamic and eccentric dynamic. सेंट्रिक डायनामिक, एक्सेंट्रिक डायनामिक, ये आपके स्कोप से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यू शुड नो द नेम्स. कंप्रेशन प्लेटिंग सिस्टम, लॉकिंग प्लेट सिस्टम, ये आपको नाम पता होने चाहिए. टेंशन बैंड ऑन द सुपीरियर बॉर्डर. ओके, अच्छा, नाउ rigid fixation is also known as the load bearing fixation. If you see, we have like a comminuted fracture here in the body of the mandible and body of the mandible area. So in this situation what we do is we expose the fracture, and this type of fixation, like I said, requires submandibular approach. इसके अंदर rigid fixation, because जो बड़ी वाली प्लेट होती है 2.4 वाली, that requires bicortical screws. जो छोटी मिनी प्लेट्स होती हैं ना, उसके सिर्फ 6 mm long screws होते हैं. they require only monocortical, they are only monocortical screws. So if you want to go bicortical, then most of the times, ऐसा नहीं है कि ट्रांसओरली हो नहीं सकता, हो भी सकता है with the help of a trocar. But if you want to do rigid fixation, most of the times we need a submandibular transfacial approach. So इसमें क्या किया गया, छोटी सी जो बोन्स थी उनको स्टेबलाइज किया है पहले with the help of small mini plates, 4 hole 2 hole जिगसॉ पजल की तरह. एंड देन जो मेजर सेगमेंट है ना, दोनों जो बेजल बोन है, देखो पूरा रैमस वाला कंपोनेंट और आगे से मैंडिबल का मिड लाइन वाला कंपोनेंट, दैट हैज़ बिन रिस्टोर्ड and fixed with the help of a 2.40 reconstruction plate with bicortical screws, at least 3 cortical screws on either side of the fracture. This is called rigid fixation. इसकी एडवांटेज क्या है? अर्ली फंक्शन. ओके, इसमें आप राइट अवे पेशेंट को कहें कुछ भी खा पी लें, कोई मसला नहीं, बिकॉज इट इज़ अ लोड बेयरिंग फिक्सेशन. कोई भी लोड है ना, वो बोन बेयर नहीं करेगी, वो सारा पेशेंट बेयर कर रहा होगा. MMF बिल्कुल नहीं करनी पड़ती इसकी. ये वाला फ़ायदा सेमी रिजिड फिक्सेशन का भी है, लेकिन रिजिड का भी है ये. एंड शॉर्टर एब्सेंस फ्रॉम वर्क. ऑब्वियसली जब वो बिल्कुल फिट हो गया है, बोन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, तो आप राइट अवे पेशेंट को आप जा सकते हैं. हम लोग सोचते पहले ना, ऐसा कुछ अर्सा पहले सोचा जाता था कि क्लोज रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ MMF वो सस्ता ट्रीटमेंट है क्योंकि प्लेट्स महंगी होती हैं. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर आप किसी की MMF कर दें तो वो खाना पीना उसका छूट जाएगा, वो जब बाहर जाना छूट जाएगा, उसकी जॉब इतनी हो जाएगी इफ़ेक्ट, तो इन द लॉन्ग रन वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा उसको जो MMF है. तो दैट इज़ वाई प्लेट्स लगा देना इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल टू द पेशेंट इकोनॉमिकली एज वेल. Disadvantages: it needs an external approach sometimes. Like I said, it can damage tooth roots if it is not placed on the lower border. ये याद रखिएगा, रिजिड जो प्लेट होती है ना 2.40, वो हमेशा लगती है. अच्छा, ज़रूरी नहीं 2.4 ही हो, 2.2 की भी प्लेट्स हैं, 2.4 की भी हैं, 2.6 की भी हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया you're trying to fix. ओके, नॉर्मली 2.4 यूज़ होती है. 2.4 वाली जो रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट है ना, दे नीड टू बी प्लेस्ड एट द इंफीरियर बॉर्डर, बिकॉज दे बायकॉर्टिकल है ना. if you have to go all throughout the cortex from one point from the buccal to the lingual, so it can actually damage the underlying teeth. Okay, it's a very exacting technique. You have to make sure कि जहाँ पे फिक्स कर रहे हो ना. अच्छा, प्लेट लगाई कैसे जाती है? प्लेट इस तरीके लगाई जाती है, we reduce the fracture segments and then we do IMF of the patient.
वी नीड टू मेक श्योर ऑक्लूजन भी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने प्लेट के साथ मैंडिबल को फिक्स कर दिया गलत ऑक्लूजन पे, तो पेशेंट वो तो फिक्स हो गया, अब पेशेंट जब बाइट करेगा तो उसके दांत सही नहीं मिल रहे होंगे। सो बिफोर प्लेसिंग द स्क्रूज, और उसको पक्का फिक्स करने से पहले ऑक्लूजन के अंदर पेशेंट को एमएमएफ करके ऑक्लूजन में डालते हैं, फिर स्क्रूज लगाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस। पॉसिबल नीड फॉर फ्यूचर प्लेट रिमूवल। प्लेट समटाइम्स उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फेक्शन, माइग्रेशन, एक्सपोजर, ऐसी सिचुएशंस में हम वी नीड टू रिमूव द प्लेट। नाउ शॉम्पीज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्टियोसिंथेसिस। ओके, ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैंने भी आपको बताया था, वो ये होते हैं कि यूजुअली वन प्लेट, पहले ये शॉम्पीज प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ अभी आपको मैं कुछ प्रिंसिपल बता रहा हूँ फिक्सेशन के। वन प्लेट विद 4 cortices ऑफ फिक्सेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जब एक प्लेट लगाते हैं ना, उसमें मिनिमम प्लीज़ 4 एरियाज़ को ज़रूर फिक्स करें, ठीक है। एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन 2 लेवल्स पे लगानी है प्लेट ज़रूर, मैंने आपको बताया था ये शॉम्पी प्रिंसिपल है। देखें, दिस इज़ द शॉम्पीज प्रिंसिपल। शॉम्पीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट in the angle area and the area anterior to the mental foramen you need 2 plates, but with the passage of time angle area की भी एंगल एरिया को भी निकाल दिया गया है, इससे एंगल पे भी सिर्फ एक प्लेट लगाई जाती है unless there is a bilateral fracture. So when there is a bilateral fracture आपको एक एंगल पे, किसी एक एंगल पे 2 प्लेट्स लगानी है, ठीक है। These are the new AO principles, okay, but इस तरीके से आप लोग याद रखें, ऐसे याद रखना आसान है। एंगल पे देखो एक प्लेट लगी हुई है, बॉडी वाले एरिया पे देयर इज़ ओनली 1 प्लेट, एंड एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पे 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। These are the compression and tension bands according to the Shompies. ये रिजिड फिक्सेशन है सब एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच के थ्रू, ये एक्सटर्नल फिक्सेशन हुई हुई है। मैंने बताया था टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस अब बाद में पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस अ फ्यू केसेस। यू सी देयर इज दिस यंग लेडी ऑफ आई गेस 21 years old, 17-year-old, and she has malocclusion. You can see there's an anterior open bite, there's a lateral, the mandible has moved, there is mandibular deviation on the towards the right side. On the radiograph we can actually, आपको जो मैं प्रेजेंटेशन दी है उसके अंदर आपको पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी और क्लियर हो जाएगी। राइट पैरासिम्फिसिस एंड लेफ्ट एंगल का फ्रैक्चर है। सो हियर यू सी ऑन द ओपीजी वी कैन सी अ राइट पैरासिम्फिसिस एंड अ लेफ्ट एंगल फ्रैक्चर। पीए ऑफ द मैंडिबल शोज, ये जो डी डायग्राम है इस पर आप देखें, जो पोस्टरो एंटीरियर व्यू ऑफ द मैंडिबल है, हेयर वी कैन सी देयर इज अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ramus. So this was fixed with the help of semi-rigid fixation with mini plates via transoral approach under general anesthesia. इसमें देखें ये मेंटल नर्व है, मेंटल फोरामेन को एक्सपोज किया गया, इंसिजन दिया गया ट्रांसओरल, मेंटल नर्व को डायसेक्ट आउट करके आइसोलेट किया एंड देन स्केलेटनाइज किया गया है मेंटल नर्व को। देन वी प्लेस्ड, फर्स्ट प्लेट लगाई जाती है मेंटल फोरामेन से नीचे, सेकंड प्लेट लगाई जाती है मेंटल फोरामेन से ऊपर। फर्स्ट प्लेट विद मिनिमम 2 screws ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रैक्चर लाइन लगाई गई। ये आप देख रहे हैं वायर्स हैं, ऊपर वायर्स लगी हुई हैं दांतों के साथ। ये क्यों लगाई गई हैं? बिकॉज पहले एमएमएफ अचीव की जाती है ताकि ओक्लूजन ठीक हो, तब फ्रैक्चर को फिक्स किया जाता है। दिस इज़ द प्लेट ऑन द एंगल, दिस इज़ अ बेंट, स्लाइटली बेंट प्लेट इन 3 dimensions। ये देखिए प्रॉपर ओक्लूजन में पहले दांतों को किया, उसके बाद प्लेट लगा दी। हेयर यू सी यहाँ पे 2 प्लेट्स लगी हुई हैं मेंटल फोरामेन वाले एरिया में, 1 प्लेट लगी हुई है वहाँ पे एंगल वाले एरिया के अंदर। दिस इज़ द पोस्ट ऑप आफ्टर 3 months, द ओक्लूजन इज़ परफेक्ट एंड द पेशेंट्स एक्स्ट्रा ओरल भी कोई साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अब पता नहीं चल रहे हैं। नाउ दिस इज़, let's discuss this case too. This is basically a suicide wound, a self-inflicted gunshot wound. Sometimes patients unfortunately due to psychiatric conditions वो सुइसाइड की जाती है, एंड जब सुइसाइड फेल्ड अटैम्प्ट होती है तो वो मैंडिबल फ्रैक्चर नॉर्मली होता है या एंटीरियर मैक्सिला फ्रैक्चर हो जाता है। Here you can see in the reconstructed 3D image of the skull, you can see right side of the mandible has been completely shattered.
सो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हाउ डू वी फिक्स अ फ्रैक्चर? इस तरह के कॉम्प्लेक्स वुंड के अंदर यू कैन नॉट जस्ट गो टेक द पेशेंट डायरेक्टली टू दी OR. यू नीड टू हैव वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग बिफोर गोइंग टू दी OR. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंडिबल को स्टडी किया जाता है ऑन द सॉफ्टवेयर. वी कैन सी पेशेंट का जो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे जो पीसेस पड़े हुए हैं उनको पकड़ के उनको जोड़ा गया है बिफोर गोइंग इनटू दी OR. ओके, छोटे छोटे मैंडिबल के पीस हैं, उनको पकड़ा, उनको जोड़ा, जोड़ने के बाद उन जुड़े हुए पीसेस का एक STL मॉडल बनाया गया. ये देखें, ठीक है, जो कि सैल्वेजेबल पीसेस थे. अब ये देखें कुछ 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 पोर्शन जुड़ गए हैं, कुछ नहीं जोड़े गए. सो दिस इज STL मॉडल इज़ बेसिकली अ स्टेरियोलिथोग्राफिक मॉडल. सो व्हाट वी डू इज़ पेशेंट का CBCT किया, उसके बाद कंप्यूटर प्लानिंग की, सॉफ्टवेयर पे हड्डी को अंदर जोड़ा गया, पहले छोटे छोटे पीसेस को पकड़ के जोड़ा. इन्फीरियर बॉर्डर को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्फीरियर बॉर्डर जब बन जाता है उसके ऊपर वी प्रिंट दैट मैंडिबल. वो प्रिंट किया जाता है ना, उस प्रिंट को कहते हैं स्टीरियोलिथोग्राफिक मॉडल. उसके ऊपर एक 2.4 रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट प्री बेंड की जाती है बिफोर गोइंग इन टू दी OR. OR में बेंड करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो पहले से यू रिड्यूस फिक्स द फ्रैक्चर एंड इन दी OR यू जस्ट डू इट क्विकली. सब मैंडिबुलर अप्रोच इसमें. अच्छा, इसमें क्यों सब मैंडिबुलर अप्रोच यूज़ की गई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, इसमें इतना बड़ा स्कार ऑलरेडी मिल रहा है ना, तो इसी स्कार को हल्का सा एक्सटेंड कर लिया. ओके, और वैसे भी बायकॉर्टिकल स्क्रूज़ की मोटी वाली प्लेट लगानी थी, तो सब मैंडिबुलर अप्रोच यूज़ की. यू सी, इसको अच्छी तरीके से फिक्स किया एंड दिस इज़ बेसिकली द पोस्ट ऑप रेडियोग्राफ. इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से प्लेट फिक्स हो चुकी हुई है. नाउ द कॉम्प्लिकेशंस. मैं एक कॉम्प्लिकेशन पहले आ गई थी जी, वो कॉम्प्लिकेशन सब कॉम्प्लिकेशंस आर बेसिकली डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन. इन 3% केसेस दे कैन बी डिलेड यूनियन. नॉर्मल यूनियन मैंने आपको बताया है 8 वीक्स के अंदर इनिशियल बोन हीलिंग हो जाती है, 6 to 8 वीक्स में, एंड देन फाइनल बोन हीलिंग होती है अराउंड 4 to 6 मंथ्स में. बट समटाइम्स due to decreased blood supply, infection, metabolic deficiencies or alcoholism, there can be delayed union or non-union. There can also be an infection. There is a 60 to 50% चांस. ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में हो रहा है. वेस्ट की अच्छी क्लीन हॉस्पिटल्स वाली कंट्री के अंदर इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, बट इन डेवलपमेंट कंट्रीज़ द रेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ हायर. और ये नॉर्मली क्यों होता है? नॉर्मली एंटीबायोटिक अब्यूज़ बहुत किया जाता है हमारी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में. दैट इज़ वाई. डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो, मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज हो, यू नो ऑल दिस पॉइंट, बट यू नीड टू नो कि इन्फेक्शन is a possible complication. Ankylosis is basically a complication जो कि आप याद रखें condylar fractures के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे. condylar fractures जो है ना, if they're not managed properly, they can lead to TMJ ankylosis. Nerve injury, obviously, permanent sensory deficiency का chances हैं. Depending upon the country and center, it ranges from 2 to 8%. Less common nerve injuries are mesenteric nerve, buccal nerve, auriculotemporal, lingual and facial nerve. And other complications, they include, these are studies I've just put in. They're not very important for you, but just you guys need to know that infection is a possibility and it is directly related with the socioeconomic status of the patient. Delayed healing and non-union are common in cases of infection. It is also common in cases where there is non-compliance. नर्व पैरेस्थीसिया, मैल ओक्लूजन, TMJ प्रॉब्लम्स. एक होता है नॉन यूनियन, एक होता है मैल यूनियन. मैल यूनियन इज़ अ कॉम्प्लिकेशन व्हेन गलत जगह पे हड्डी जोड़ दी जाए, और बाद में क्या होगा, पेशेंट आएगा विद एस्थेटिक प्रॉब्लम्स और फंक्शनल प्रॉब्लम. फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है ओक्लूजन सही नहीं हो रही, तो मैल यूनियन इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन. दी स्टडीज़ आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. बस कंक्लूजन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी देखो, इतने सारे हमने पढ़े हैं. वी हैव रेड अबाउट आई डोंट नो 20 ऑप्शंस, 10-20 options of fixing a mandible. It all depends upon the condition in which the patient has presented, the socioeconomic status of the patient. The socioeconomic status is not important anymore, but it is mentioned in the literature, so you need to keep in mind. But the most important thing is to manage the patient properly, and that depends upon many factors like age of the patient, medical status of the patient, skill of the surgeon, preference of the surgeon, availability of many facilities, and associated with other fractures and other systemic conditions. That's it.
Thank you very much. If you guys have any questions, please let me know in the comment sections, or you can just have a